علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپہ حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور آج موضوع گفتگو ہے پاناما لیکس اور دیگر سیاسی امور، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب شاہ محمود قریشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اور مزید آپ پہ پیار اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلا کے ہمیں پلیٹ فارم دیا عوام کو یہ بتانے کا کہ ہم یہ جو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ دوستو، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکمران اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ ان کے وکلاء عدالت میں شرمندہ ہو چکے ہیں۔ ان کے وزراء اپنی بد نصیبی کا رونا رو چکے ہیں۔ ان کے اقتدار والے نصیب سو چکے ہیں۔ ان کے اپنے ہی بیانات ان کے راستے میں کانٹے بو چکے ہیں۔ بہت شکریہ جنید، ابھی ہمارے پاس دھو چکے ہیں، بو چکے ہیں، سمو چکے ہیں۔ کافی خزانہ پڑا ہوا تھا، مگر ہم اپنی بات کو مختصر کیے دیتے ہیں چونکہ آپ ہمیں وقت بہت کم دیتے ہیں۔ شاہ جی، سارا وقت ہی آپ کا ہے۔ صرف 7 منٹ کا آپ کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور ہماری اردو 7 منٹ میں تو گرمی پکڑتی ہے، اور ان سردیوں میں تو کبھی کبھی خاص طور پہ رات کے وقت 8.5 منٹ بھی لے جاتی ہے۔ اچھا جی، چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو کہہ دیا کہ پاناما لیکس کا سکینڈل جو ہے وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ان کو رشتہ داری کی وجہ سے وفاقی وزارت مل جاتی ہے، ورنہ اس طرح کے منہ متھے والے لوگ لاری اڈے کے کونے پہ گھڑے میں مٹھے ٹھنڈے کر کے بیچتے ہیں، اور چونکہ مٹھے صرف گرمیوں میں ہوتے ہیں اس لیے سردیوں میں فارغ، اور گرم انڈے بیچنے کا مشورہ اس لیے قبول نہیں فرماتے کہ یہ ہمارے سٹیٹس سے کم درجے کا کاروبار ہے۔ بندہ پچھے مٹھے کیڑا کرنل قذافی بیچدا سی۔ کیا جی ہیٹ پکڑ رہے آپ؟ ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو میرے 4.5 منٹ پڑے ہوئے۔ جی فرمائیے شاہ جی۔ گرمی تو ہم پکڑ چکے ہیں، مگر ابھی چوتھا گیئر نہیں پکڑا۔ یہ جو ڈار صاحب نے فرمایا، ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کیس بن گیا ہے کہ سائے پارینہ، اصل میں حکومتی وزراء کی فوج ہو گئی ہے نابینا۔ ان کی تو یہ خواہش ہے بڑی درینا، لیکن ہم ان کا حرام کر دیں گے جینا۔ ٹینشن میں بھول جائیں گے یہ کھانا پینا۔ ارے کس منہ سے یہ بیان دیتے ہیں چوڑا کر کر کے سینہ۔ ہمارے خلاف جتنا بھی ہے ان کے اندر کینہ، اور ان کا ہر وزیر جو بڑا بنا بھرتا ہے ماما دینا۔ یہ صرف جنوری کا لینے دے مہینہ، پھر دیکھیے گا ٹھنڈ میں بھی کیسے چھوٹتا ہے ان کا پسینہ۔ بھائی اسمبلی میں تو پہنچتی نہیں کبھی ان کی کابینہ، اور عدالت میں یوں جاتے ہیں جیسے اندر چاول بانٹ رہی ہے بابی سفینہ۔ میں نے تو عمران سے کہہ دیا ہے کہ عمران ہونے نانو کدی چھڈی نا، عوام کی ان سے جان چھوٹے گی تو عوام کرتی پھرے گی کوکو کورینا، کوکو کورینا، کوکو کورینا، کوکو کورینا۔ ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اقتدار پی ٹی آئی سے اتنا ہی دور رہ گیا ہے جتنا جہلم سے ہے دینا۔ اس کے آگے پھر بنتا ہے کوکو کورینا، کوکو کورینا۔ شاہ جی ہیٹ پھاڑ رہے نے۔ ہیٹ پھاڑ رہے ہیں شاہ جی نے کہ جنریٹر نے۔ اچھا شاہ جی، یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی 27 دسمبر کے بعد سڑکوں پہ نکلتی ہے تو شاہ محمود قریشی ساتھ دے گا، یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا پارٹی پالیسی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جنید میاں کہ شاہ محمود اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی جسم کے دو نام ہیں۔ شاہ محمود کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات
पार्टी पॉलिसी ही समझनी चाहिए। अच्छा, सही। और शाह महमूद से कोई बात ऐसी नहीं निकलती जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। अच्छा, यहां तक के शाह महमूद अगर सड़क पर जाते जाते ठोकर खा के मुंह से ये निकाले दुर्फिटे मुंह, तो ये भी पार्टी पॉलिसी ही है। लो जी शाह जी तो डिग पे जे डिग पे ने तो फौरन उठ भी जान गए। शाह महमूद है कोई चिंची नहीं जेड़ा उठदिया भी 1.5-2 घंटे ले जाएगा। और ये भी याद रखिए, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, और इस खुश्क सर्दी की वजह से आधा पाकिस्तान है हालते खंग में। तो हम कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी अगर सड़कों पे निकली तो हम उसका साथ देंगे। शर्त क्या है? मगर हमारी गैर नाकस राय ये कहती है कि पीपल्स पार्टी इस 27 दिसंबर को क्या 27 दिसंबर 2027 में भी सड़कों पे नहीं आएगी। क्यों? म्यूं। अच्छा जी, क्या हो गया? हाँ, ये ना हो कि बिलावल हाउस के अंदर जो सड़क अंदर से गेट तक जाती है, पीपल्स पार्टी उस पे आके ये ना कह दे कि लो जी हुन सी सड़क ते आ गए हैं। शाह जी, पीपल्स पार्टी इस मुल्क में बड़ी बड़ी एहतजाजी तहरीकें चला चुकी है। तेरा मुंह जिवें ऐनक वाला रसगुल्ला होगा। आपको झुकते जेब नहीं देती। आपको भी ऐसी बातें जेब नहीं देती। आप सीनियर सहाफी हैं, आप तारीख को जानते हैं, समझते हैं। जब पीपल्स पार्टी इस तरह की तहरीकें चलाया करती थी, बबांगे दोहल सड़क पे आया करती थी, आप जानते हैं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी के माथे का झूमर कौन था? भुट्टो साहब, तेरा मुंह वाकई ऐनक वाले रसगुल्ले जैसा है। ये आप पहले कह चुके हैं। पहले 2 नंबर ऐनक वाला क्या थी, उन 5 नंबर ऐनक वाला कह रहे हो। क्या हो गया आपको? भाई याद करो उस वक्त पीपल्स पार्टी की शान कौन था? कौन था? वो वही लंबा सा। कौन? भाई जो वजारत खारजा के मनसब पे भी रह चुका है, भुट्टो साहब ही थे। वो वाला। कौन? उधर वाला, उधर वाला। किधर वाला? उधर वाला, जनूबी पंजाब वाला। ओ, यूसुफ रजा गिलानी। तेरा मुंह जी में 8 नंबर ऐनक वाला रसगुल्ला होगा। पहले 5 नंबर से, उधर पहले 2 नंबर से। कौन, बता दे फिर। चिट्टे वाला वाला जिन्ने बाइक भी लाया हुंदा सी, ग्रे सूट वाला जिते कोलचा वाला कप्पिया होया सी। वो शाह महमूद कुरैशी अन्या रसगुल्लिया। मैं को तो तेरे प्रोग्राम में नहीं आना। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, हस्बे डाक में पहले एक व्हाट्सएप मैसेज है, बड़ा दिलचस्प, जरा सुने। सुनाए जनाब। अस्सलाम वालेकुम हस्बे आल टीम, मेरा नाम हसनैन है और मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है गौरी साहब, ये सवाल आपको छेड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि धुलाई के लिए कौन सा सर्फ सबसे अच्छा है? ये वो पूछ रहे हैं कि गौरी साहब से पूछें कि धुलाई के लिए सबसे अच्छा वॉशिंग पाउडर कौन सा है। ये छेड़ नहीं रहा तो और सी पैक का रूट पूछ रहा है। यार वॉशिंग पाउडर की गुफ्तगू तुम्हारे साथ करना तुम्हें छेड़ना है कोई? अजीजी साहब मैं धोबी हाँ, या मैं नहर ते कपड़े धोने वेख लिया ने, किसी और को पूछे। मैनू भी पता किवें धोई दे कपड़े, मैं ते आप सर्फ दी जगह सारा नील पा बैठा। आ सूट दा वेखो की हाल हो गया। अच्छा, वो गाना तेनों वेख के बने मैं नील कराइया नील का, मेरा तन मन नीलो नील। और वैसे भी यार, नील डालना शौहरों का काम नहीं होता, बीवियों का काम होता है। अब बता, या अब तुम्हें शर्ट उतार के दिखाए कहां कहां नील पड़ा हुआ। वैसे भी मैं इस बच्चे पे हैरान हूं, लंदन में रहता है, सारा लंदन छड़ के ते वॉशिंग पाउडर साढ़े को पूछे। इसको अंग्रेजी नहीं आती, या इसका कोई अंग्रेज वाकफ नहीं है उधर, या अभी तक उधर इसकी कोई महल्लेदारी बनी नहीं है। भाई हमें क्या पता उधर कौन कौन से वॉशिंग पाउडर बेचते हैं। यार ये लोग चेजा लेते हैं हमारा। हाँ, चेजा, वरना हम यहाँ से कौन प्रोफेसर लग के बैठे हैं। यार तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया।
चलो तुम्हारी तालीफ कल्ब के लिए एक खत पढ़ देते हैं, ठीक है। जी खत है लाहौर से। बाबर जावेद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम जी बाबर साहेब। जनाब अजीजी साहब, सर्दी शुरू हो गई है, आप प्लीज कुछ एहतियात किया करें, क्योंकि परसों मैंने आपको अपनी आंखों से स्कूटर पर जाते हुए देखा कि आपने सर्दी के बायस अपने दोनों हाथ हैंडल की बजाय अपने बगलों में दबाए हुए थे। हमें आपसे बहुत प्यार है, अपना ख्याल रखा करें। देखो यार, तुम पहले वन व्हीलिंग करते थे, अब ये तुमने स्टंट शुरू कर दिए। अरे कैसे चला लेते हो? सदाया है तुमने स्कूटर अपना? पैरों से चला बता जो दिया तुमने कि चेजा लेते हैं लोग, बात खत्म हो गई। नहीं यार बताओ ना, ये हरकत की है तुमने और वाकई? नहीं यार मैंने कहा, मैं पागल हूँ। नहीं होता है ना कि यार मेरा अपना स्कूटर है ना, कहाँ जाना है, सीधा ऐसे कर। भाईजान चेजा लेते हैं ये लोग, चेजा। वरना हम कौन सी यहाँ प्रोफेसर लगे? वरना स्कूटर ऐसे चलता है? इस उम्र में तो पैदल बंदा ऐसे नहीं चल सकता, उसको भी इधर उधर हाथ करने पड़ते हैं। अच्छा ये व्हाट्सएप मैसेज सुने यार। अस्सलाम अलैकुम हस्बे हाल टीम, मेरा नाम अम्मार आलम। गौरी भाई, थैला भाई, अजीजी भाई, जिस मोहल्ले के आप दानिश्वर होंगे उस मोहल्ले का क्या हाल होगा? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚਿਪਸ ਹੋਈ। नहीं तुमने बंदे पे नहीं गौर किया, मल्ले को तो छोड़ो। दिखाओ जरा ये दोबारा, यार क्या हो गया? जरा वो देखो तो सही। सुभान अल्लाह, शोल्डर ग्रीन रंग के लगाए हुए यार व्हाइट शर्ट के ऊपर। अच्छा वाला सोबर आदमी है। और यार ये चेजा लेते हैं, चेजा। बात तुम समझा कर, सवाल तो सुनो भाई। यार हम कौन से इधर प्रोफेसर? जी खत है रावलपिंडी से। अख्तर अब्बास लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, पिछले दिनों प्रोग्राम के कटहरे में जेब कतरा आया हुआ था। जुनैद साहब, आपको चाहिए था कि उस जेब कतरे को जाने ना देते बल्कि पकड़कर फेंटी लगाते। बस ठीक है, बस ठीक है। क्यों, क्या कहते हैं जी आप इस तजवीज पे? बताओ ना। तो है तुमको चेजा लेते हैं ये। नहीं वरना तुम कौन से इधर प्रोफेसर लगे हो? है को तुक बनता कि जेब कतरा जो बना हुआ था, बना हुआ ही था ना यार, कौन सा जेब कतरा? उसको पकड़ के जुनैद साहब फेंटी लगाते। सीरियसली पूछा, वो चेजा वेजा नहीं ले रहे? सीरियसली यार चेजा लेते हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। जी अगला खत है कराची से। अहमद नवाज लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, आपका प्रोग्राम नए सेगमेंट्स के शामिल होने से मजीद इंफॉर्मेटिव और बहुत दिलचस्प हो गया है, खास तौर पर जब अजीजी साहब बैनुल-अक़वामी हालात पर सैर हासिल तज्जिया करते हैं तो मालूमात के ढेर लगा देते हैं। शुक्र है किसी का सीरियस खाते भी आया। शुक्र है। ओ भाई चेजा लेते हैं, चेजा। खालिया कौन से प्रोफेसर लगे हुए हैं? यार हर बात को में ये ऐसे कहते जाओ, उसने ठीक कहा है। हद हो गई है तुम्हारे वाली। चेजा नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा चेजा, हमारे साथ रहिएगा। ला, ब्रेक की जगह भी चेंज आई दे। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने दुनिया न्यूज के तवसत से पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े अराजी स्कैंडल की तफसीलात जानी। उसी स्कैंडल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पटवारी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें, मसला ये है कि अगर एक स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है तो उसकी तहकीकात तक या उसके फैसले तक आपकी मेहरबानी है अगर आप हम लोगों को ना जलील करें। काफी तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं। अब तो अदालत में मामला जाएगा तो जहां आपको एतराफ ही करना है। शवाहिद इतने ठोस हैं, इतने ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि आपके पास डिफेंस में एक लफ्ज भी कहने के लिए नहीं। ठोस आपने इतनी इतनी जोर से कहा है जैसे आपने वो रोड़े इकट्ठे कर लिए हमारे मारने के लिए।
कोई एक ठोस आप शवाहद बता दें अगर। मैं तो बताता हूँ, अर्ज जी करता हूँ, अर्ज जी करता नहीं हूँ। नहीं, हुक्म करे। 1,00,000 कब करते हैं आप मीडिया, आप हुक्म करे। 1,93,000 कनाल अराजी। ये ठोस है। हाँ सुने तो सही ना, सुने, इससे भी ज्यादा ठोस बताता हूँ। ये पूरा एक माफिया था जो लाहौर में न जाने कब से काम कर रहा था कि अदालती फैसले भी खुद तहरीर किए। ये 1995 से लेकर बाद तक जज कई भी आप सालों ही, वकील भी आप ही। हाँ, जज भी खुद ही, वकील पकड़े। ये कहाँ गए कि 1995 के बाद 1962 का एक फैसला तहरीर किया जिसमें जज साहब ने लिखा कि जी आप एलडीए से रजू करें, और एलडीए 1975 में मार्ज वजूद में आया। 1962 के फैसले ने इनको पकड़वाया है। बताए, हो जाती है गलती। वो ये गलती है। गलती इंसानों से ही होती है ना जी। नहीं एहतियात की होगी उस कम वक्त उस वक्त के पटवारी ने, वरना मोहतात ही तो होता है पटवारी। ये तो इतनी एहतियात करता है और हर शोबे में इतनी एहतियात करता है पटवारी कि आपने वो गाना सुना ही है, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। इसमें एहतियात कहां से आ गई? यही काम अगर नजदीक जाके किया जाए तो बेहतर हो सकता है, मगर एहतियात दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। और अगर पटवारी का मुंडा इतना मोहतात है तो पटवारी क्या होगा? आप जरा मुझे ये बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी है। ओए आपका तो टीवी अंदर से चोरी हो गया हुआ है, इधर तो कख भी नहीं। इधर बैठो, दीवारें चोरी इधर के पे अलावा कोई काम सूझता ही नहीं है आपको। भाई जी मसला ये है कि अगर वो तारीख गलत लिख बैठा है कम वक्त, यानी 95 के बाद फैसला लिख रहा है अगर जज का 1962 की तारीख डाल के, और वो लिख बैठा है कि एलडीए से रजू करे और एलडीए 75 में हुआ है मार्ज वजूद में, तो माफ कर दे। कैसे माफ कर दे? और कहो भाई 2 लाख कनाल अराजी का मामला है। माफ पता है कैसे करते हैं? हाँ। जैसे उसने फैसला लिख दिया अस्तगफिरुल्लाह। वहां पे लिख दे इस पटवारी को माफ किया कम वक्त को। अच्छा यार, माफी तलाफी में बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों बेचारों का मसला हल करो। इनका क्या मसला है? चंबल निकल आई है इनको या एलडीए वालों ने इनकी चुगियां उठवा दी हैं, और भाईजान, या इन बेचारों ने कहीं कह दिया है कि हम ओबामा के कदन हैं और लोग मान नहीं रहे। ओ भाई सुनो मेरी बात, ये जो इधर बैठे हुए हैं, ये इधर जो बैठे हुए जी जी, ये मेरा ख्याल है गिल्ले गिल्ले थे, ज्यादा बैठ गए हैं। यार मेरी बात सुनो, ये जो इधर तशरीफ रखते हैं, मुंह इनका तशरीफ रखने वाला तो नहीं, मुंह से तो लगता है कि बह मार भी जा। यार मेरी बात सुनो, ये जो इधर बैठे हुए हैं इन्होंने जमीन बेचनी है। ओ ऐसे खूबसूरत। हाँ, वाह। और जो उधर है वो देखो, वो ओ हो उन्होंने जमीन खरीदनी है। सदके जाओ इनके भी। हाँ। दोनों प्यारे हैं। हाँ। मगर आप इधर किधर आ गए हैं? आप मेरे दफ्तर में आते। फर्द नहीं दे रहे तुम लोग यार। हम नहीं दे रहे। भाई जी किसी भी फर्द को अगर फर्द लेनी आती है तो हर फर्द ऐसे देता है। कौन सी है जमीन आपकी? ये तिल्ले वाली। बहुत अच्छे, कसूती जमीन भी होती है। यार बताओ ना। ए भाई जी ये ठोकर दे नाल एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पीछे मेरा प्लाट आ। ओ तेरी खैर होवे, उसकी फर्द नहीं मिल सकती भाई जी। जी जे फर्द ना मिले मैं उससे पेट्रोल पंप तो 1 लीटर पेट्रोल लेके अपने आप को आग ला लेनी है। लो फजूल खर्च। अगर आग लगानी है तो लीटर पेट्रोल क्यों जाया करते हो? एक करूली अपने आप पे करके आग लगाओ, बाकी पेट्रोल बचाओ एम्बुलेंस के लिए। देखो बात ये गलत कर रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं उल्टा इसे डराने की कोशिश। क्यों नहीं फर्द दे रहे? ओ भाई जी कैसे फर्द दे दूं इनको? उस रकबे पे तो केस हुए हैं। ये वही मामला जो मंजर आम पर आया है स्कैंडल में, जानबूझ के केस करवा के तो बाद में वो अराजी हथियाली जाती। ओ भाई जी अगर आप दुनिया चैनल वालों ने हमारा एक केस पकड़ ही लिया है तो बाकी काम तो करन दियो सानू। ये केस अब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बैठो। खाजा मंतकी पहले ही गलत आदमी है। ਭਾਈ ਤੇ ਟੇਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਸਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿਤੇ।
तुसी क्यों तड़प रहे हो? उन्होंने जमीन लेनी है यार, इन्होंने जमीन ਉਹ ਕਾਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਹੇ इन्होंने उस पर शादी हाल बनाना है ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। यार। वो बेचारे इसलिए जमीन लेना चाह रहे हैं कि उन्होंने उसी जमीन पर शादी हाल बनाना है, औसत के और ये कहते हैं कि उस शादी हाल में सबसे पहली शादी मैंने अपनी करवानी है। ओ मेरे अमाल का दो में ही कम गलत। क्यों यार? ना शादी हाल इनको सूट करता है ना इनको शादी सूट करती है। हद हो गई यार। मुंह इनका तलाक हाल बनाने वाला है और बना ये शादी हाल रहे और उसमें भी जुल्म ये कि सबसे पहली शादी अपनी करनी चाहते हैं। मैं समझ गया हूँ इनको शादी के लिए कोई शादी हाल दे ही नहीं रहा, लो इसलिए इन्होंने फैसला किया है कि फिर अपने ही बना के करा लेते हैं। जाने दो यार। तो मैं समझना साहब भाईजान सिर्फ करप्ट ही ने, ये ते नैश भी ने। ले पुत्र प्लाट ते तेरा गया ही सी, हुण तेरी शादी भी गई। निक्का जिहा पिद्दा जिहा छोटा जिहा तेरे ते केस पाना ते ब्याह तेरे दी तारीख लंघ जानी है, जमानत नहीं होनी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। अपने पुत नु कैनेडा भेज रहे हो ਜੀ सारी जिंदगी उन्होंने दाता साहब लंगर लैंड भेज दे रहे हो, हुण सीधा कैनेडा बेटे, डेस्टिनेशन बदलो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक मेरी गाली याद रखे, उस शख्स को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जो हौसला ना हारे, इसलिए हौसला नहीं हारना चाहिए। उसकी जिंदा मिसाल तो मैं खुद हूँ। अच्छा, कितना कुछ स्नैप करता है मुझे ये पाजन है। जुनैद सलीम के लंबे लंबे नाखून हैं, 2 लंबे लंबे दांत हैं, सर पे 2 सींग हैं। क्या तुम पेंट करते हो जुनैद सलीम को, हैं? नहीं यार, प्यारा है प्यारा है। मैं कहना सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि हौसला नहीं हारना चाहिए। ये घबराया हुआ था थैला, तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ हौसले में रखो। पार्ट टाइम तैयाब की दुकान पे काम करता है ना, तो वो जो मालिक है ना, जो तैयाब बेचता है बंदा, वो बड़ा यारी हुआ है। वो इसे कह रहा था कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मैंने कहा यार वो तुम्हारी जगह पे कौन सा बंदा रख लेगा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन जो है वो और किसी की हो नहीं सकती। वो क्या? भाई जी ये शीशी में बगैर कुप्पी के तैयाब डाल लेता है और ये बड़ा मुश्किल काम है। जी सर, थोड़ा सा भी गिरे वो तनख्वाह में से पैसे काट लेता है। यार कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, जो अल्लाह पाक ने रिज़्क़ देना है वो दे देना है, इंतजाम में से भी वो मिलेगा। पक्का है, फिक्र ना करो। जी क्या है आज की पहली खबर? जी सुने, इमरान खान से तंग पीटीआई रहनुमा राब्ते कर रहे हैं। इमरान का मौक़िफ़ सुबह शाम बदलता है ख्वाजा आसिफ। बहुत अच्छे, ख्वाजा आसिफ साहब भी वैसे इस किस्म की बौंगी मारते हैं ना कि हंसी निकले बगैर रहती नहीं है। वो शायद किसी ने बेचारे ने को रॉन्ग कॉल कर दी है, उधर ही पके हो गए। वो किसी का नंबर गलत मिल गया तो उसने कहा यार जमशेद गल सुन, मैं महमूद बोल रहा हूँ, मैं ये इमरान से बहुत अक गया हूँ। ये उधर ही पक्के हो गए हैं। ये जो महमूद बोल रहा है ये शाह महमूद कुरैशी है, और ये जिस इमरान से अका हुआ वो इमरान खान है। और ये नहीं सोच रहे कि उसने इनको जमशेद कहा है, इसलिए ये रॉन्ग कॉल है। बंदा पूछे ख्वाजा साहब अगर किसी ने पार्टी ज्वाइन करनी है नून लीग, तो वो नवाज शरीफ साहब से मिलेगा, शहबाज शरीफ साहब से मिलेगा। आपको किस लिए उसने फोन करके अपने बैलेंस का बेड़ा गर्क करना है? 100 रुपये का वो बैलेंस डलवाए फोन में कॉल करने के लिए, 35 रुपये तो वैसे ही टैक्स कटिया गया, बाकी 65 रुपए में से 60 रुपये का इन्होंने करना है। ये जो हमारी पार्टी जो है इसमें आने का तरीका ये नहीं है, ये जो है तरीका आपका ये गलत है। और हमारे पार्टी के असूल जो हैं वो ये हैं कि ये जो है ये, इतने में वो टेलीफोन वाली लड़की भी ऐसे ही बोलना शुरू कर देती है, इस बाकी बात के लिए आपके पास जो है वो बैलेंस नहीं है। यार बड़ा मजा आ रहा है, 10 रुपए का और कर दो। बैलेंस तो पहले डलवाओ, 65 रुपए के बैलेंस में इतना ही ये जो है होता है। इसलिए इस तरह की मेरा ख्याल है खुश फहमियों में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अमरीकी CIA ने इंकशाफ किया है कि रूस ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत करके ट्रंप को जितवाया। बल्ले बल्ले बल्ले, हल्की सी इधर लुड्डी बनती।
हाय हाय सीएए के लिए, रूस के लिए या ट्रंप के लिए? ये अमेरिकी CIA की बेबसी पे लुड़ी डाली है भाई जी। कहा ये पूरी दुनिया के ऊपर शिकंजा डाल के बैठी हुई थी, दावे इसके ऐसे ऐसे बड़े थे और किस तरह बेचारी बेबस अब हो गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अक्की पहलवान का बड़ा नाम था, हाय हाय हाय, अनोखी के साथ कुश्ती हुई, बाद में बेचारा इंटरव्यू दे रहा था कि उसने मेरी आंखों में उंगलियां मारी और मेरी बाह पे पार डाल के तो तोड़ दी। यार CIA है, हाय हाय हाय, देखो ना यारा कि वो खुद मान रही है कि ये ट्रंप को जितवाने में रूस ने मुदाखलत की है। अगर रूस की मुदाखलत से अमेरिका का सदर बन गया ना जी, तो फिर CIA को अपनी हट्टी बंद करके को और काम शुरू कर ले। इसका मतलब ये भी हुआ कि रूस ने अमेरिका से बदला ले लिया। हाँ जी, और बदला फिर उसने पूरी दुनिया की तरफ से लिया, कल्ला अपना नहीं लिया। अब फिर सीएए की जासूसी का ये दावा कहा गया कि हमें आसमान में उड़ने वाली चिड़िया और समंदर में तैरने वाली मछली के पेट में क्या है, कितने अंडे हैं, ये भी पता है। हाँ जी, तो ये नहीं पता चला कि रूस क्या कर रहा था। हाँ जी, रूस ने आमलेट बना दिया उन अंडों का। देखो ना जरा, कहाँ हर मुल्क की हुकूमत बनाने में अमेरिका मुदाखलत करता था और अमेरिका की मर्जी से बनती थी। अब अमेरिका की अपनी हुकूमत रूस की मुदाखलत से बनी। अजीजी ये रूस और रशिया एक ही है? यार हमेशा इस बंदे ने ऐसा सवाल किया जिसका मुझे भी नहीं पता। यार दानश्वर आप तो। ऐसे सवाल पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और रशिया को ही रूस कहते हैं, सदाइया। और रूस उसको नहीं कहते कि मेरा भाई रूस के बैठ गया है। बहुत अच्छी, ये तो कोई ठेठ पंजाबी उर्दू बोलेगा तो कहेगा यार मेरा भाई छोटा रूस के बैठ गया। रूस के होता है, रूस के बैठ गया। रूसे हो सनम, तुमको कैसे मनाऊं? यार रूठे हो यार। इस बंदे ने हमारे साथ मिलके हमारी उर्दू ठीक कराने की बजाय अपनी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा जी, भारत से खबर है जहां 162 अफराद पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा खानदान रहता है। भारतीय रियासत मिजोरम में 72 साला ज़ियोना की 38 बीवियां, 79 बेटे बेटियां और 35 नवासियां और पोते हैं। लो जी, सबसे पहले तो मैं इस सारे खानदान के लिए कहूंगा माशाल्लाह। उसके बाद इस खानदान के सरबराह ज़ियोना के लिए कहूंगा भाई जी बहुत फिट है मुंह। यानी 38 बीवियां ही कर ली। अजीजी गुस्सा ना करो, जिस इलाके में वो ज़ियोना रहता है ना, 38 बीवियों में से कोई मर के 1-2 खूबसूरत होगी। तो बाकी फिर किस लिए कर लिए? बाकी बस मज्जां नूं पट्ठे पुट्ठे पाना से रखियां। आहो घरां 'च 100 मजबूरियां होंदियां। चलो 38 तो मजबूरियां थी, बाकी 99 बेटे बेटियां और 35 नवासे नवासियां हैं। ये तो बच्चों के खिलौने भी डायरेक्ट चाइना से मंगवाता हो। और बच्चों के नाम तो नहीं रखे हुए, नंबर प्लेट लगाई हुई है सारों को। जाहिर है जी, इतने नाम कहां से वो बेचारा रखे? SLA 32 चोट नहीं आया, 8वां जी। बाद जो पता लगे भाई जी तो एक्सल टूटा है, चौंक खलोता है। बहुत ही यार ये वैसे हद कर दिया इस बंदे ने, है को बात करने वाले। इतने लोगों के लिए खाना किस तरह वो खुरलियों में डाल के खुआते हो? इतने लोगों के लिए तो मंजियां खरीदने जाए तो वो कहते होंगे भाई जी अगले साल आना, फिर बन ऑर्डर दे जाओ। अगले साल पता चला 20 और चाहिए। जाहिर है जो इसने कम बहाया हुआ है इसी तरह बेचारे के साथ होता होगा। जिन्ने दे बच्चे ने स्कूल भी इन्हें छोटा जिहा अपना ही बनाया होना। हाँ जी, जाहिर है गैर स्कूल तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी दोस्तों, माशाल्लाह 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 12 रबीउल अव्वल आ गई है। इंसानियत को रोशन करने का दिन आ गया। सुभान अल्लाह। इस हवाले से यार जुनैद मेरे ज़हन में आ रहा था कि नात खानी जो है, नात पढ़ना जो है, ये घरों में बड़ा रवाज हुआ करता था बहुत ज्यादा। अक्सर जो है ना जी फैमिलियां
وہ بچوں کو کہا کرتی تھی کہ چلو بیٹا ذرا نعت سناؤ، بہت فخر کی بات سمجھی اور چھوٹے چھوٹے بچے بڑی پیاری نعت پڑھا کرتے ہیں۔ اب گو یہ نعت خان کافی سارے مشہور ہو چکے ہیں جو جا کے نعت پڑھتے ہیں پروگراموں میں، مگر عام عوام کے اندر یہ نعت خانی جو ہے یہ بچوں میں نعت پڑھنے کا، نعت سیکھنے کا رجحان جو ہے وہ بہرحال میرا خیال کم ہوگا، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے، کیا؟ کبھی غور کرو کہ ایک تو یہ کہ اسکولوں میں صبح کے وقت جب سب جمع ہوتے تھے جس کو اسمبلی کہتے ہیں، اس کا رواج ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اسمبلی کے دوران نعت اور تلاوت کلام پاک یہ ہر اسمبلی کا لازمی حصہ ہوا کرتا تھا۔ بچے کو بہت کچھ اس کے علاوہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا تھا، نئے نئے نعت خواں پیدا ہوتے تھے، بچوں میں سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، وہ اب اکثر جگہ پہ ہوتی نہیں ہے، اسمبلی نہیں ہوتی، اسمبلی ہوتی ہے تو پھر نعت نہیں ہوتی۔ ہاں جی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، مالک کائنات کو وجہ تخلیق کائنات کا نام لے کے آپ دن کا آغاز اسکول میں کر رہے ہیں، پھر برکتیں ہی برکتیں ہاں جی، ان کو یاد کرنے کا ایک وسیلہ بن جاتا تھا۔ سارے لوگ جو ہیں وہ نعت پڑھنے والا بھی اور نعت سننے والے بھی، وہ سارے ایک دفعہ یاد تازہ کر لیتے تھے۔ اور جب ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، چرند پرند درخت ہر جو چیز ہے اس کائنات کی وہ مدح کر رہی ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات کے لیے وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کی تعریف کر رہی۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے نعت کو بھی کسی نہ کسی حوالے سے متنازعہ بنا دیا ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی انداز میں فرقہ واریت سے جوڑ دیا ہے، حالانکہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضرت حسان بن ثابت جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ دربار رسالت کے نعت خواں ہیں، اور باقاعدہ وہ صرف نعت ہی نہیں پڑھتے تھے، وہ نعت کے ذریعے بھی دشمنوں کے جو الزامات تھے ان کا جواب بھی دیتے تھے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور پھر باقاعدہ اس کے بعد پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جتنے اسلامی ملک ہیں وہاں پہ باقاعدہ نعت سکھانے کے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، لیکن ہم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ نعت خوانی کا بچوں میں مقابلہ ہوا کرتے اسکولوں میں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ابھی موجود ہیں الحمدللہ، ایسی کوئی مایوسی والی بات نہیں، لیکن وہ بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ جب بات کرتے ہیں، کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے جو خدا نخواستہ نعت کی اٹسیلف مخالفت کرتا ہو، اور دوسری طرف کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے جو نعت کے نام پر ہلڑ بازی کی اجازت دیتا ہو، کیونکہ نعت کا جو ایک تقدس ہے وہ بہرحال قائم رکھا جانا چاہیے۔ دیکھو کہ بیہودہ اور لغو قسم کے جو گانے ہیں ان کی طرز پہ نعت بنانا، نعت کی جو اصل روح ہے اس کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح بہنگم قسم کی موسیقی کے شور میں نعت پڑھنا، یہ میرا خیال نعت کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ ہاں جی، ایسے پیارے نعت خان ماشاءاللہ ہوتے تھے، اور اب بھی موجود ہیں جو نعت پڑھتے ہیں، تو جو انسانیت جس کا درس سرکار دو عالم نے دیا وہ تازہ ہو جاتی ہے، انسانیت وہ ساری تصویریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ نعت لکھنا جو ہے وہ بھی ایک بہت کمال کا فن ہے، اور جو لکھنے والے جیسے حفیظ طائب صاحب جیسے لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے جو نعت لکھی ہے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا، انسانیت کی، انسان کی صفات کو بیان کیا، مسلمان کی صفات کو بیان کیا، اور وہ صفات تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے جو جنید جمشید اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یہ نعت پڑھا کرتے تھے، ایسا یہ نعت میں اور اپنے محبت میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے پڑھتے تھے۔ اب صبح جب 12 ربیع الاول کی نشریات ہو رہی ہوں گی تو کون سی آنکھ جنید جمشید کو یاد کر کے اشک بار نہیں ہو رہی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ 12 ربیع الاول سے چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا، تو جنید صاحب کو جو سب سے خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا وہ یہ شعر ہے کہ عرش پہ محفل نعت سجائی گئی ہے، ثنا خواں زمین سے بلایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو جی، یہ جو نعت ہے یہ تو ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک نذرانہ ہوتا ہے، ورنہ وہ ہماری اوقات کیا اور مدت رسول، وہ ڈاکٹر فقیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نعت کا شعر ہے نا
ہے میریاں ہمداں نعتاں تو بہت اتا مقام محمد پہ اپنے شیر سجانا ماں وچ لکھ لکھ نام محمد سبحان کیڑی دریا وچ اتر کے کی ویکھے پار کنارے ہائے ہائے رائی بے قدری کی جانے پربت کھل کھلا لارے تو جناب آپ نے بھی آج ہمیں وعدہ کیا ہوا ہے کہ نعت آپ سنائیں گے، ہمیں ذرا پلیز عنایت کریں۔ آج کل یہ بڑی پیاری نعت زبان زد عام ہے، جی ارشاد۔ چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، سبحان اللہ۔ ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم سبحان اللہ۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔